But we Yes. didn't, but we didn't learn one thing without YAML how we can run the pipeline. Okay. 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 Without writing YAML, how we can write the pipeline. Mm-hmm. Okay. That I will tell you. Okay. These Okay. things. These things will help you in future. Like .NET things, na .NET code was not running properly. Yeah. For that I will make you laugh. Okay. Then you try your. And can you share me this recording? This recording today. Yeah, sure. I can do that. Okay. So this is my Java code. Okay, Mm-hmm. somebody when I worked on Ansible and Jenkins and these things, okay, some student came and I how to clear his certification, I helped him. Okay, Okay. so that time I did. So that is the code. So that is t- till this code I'm doing these things and giving support. So many Mm-hmm. things I'm doing. Okay, Yeah. so then I'll go to new pipeline. That is why this option must not be coming at your end. Okay. Yeah. See, check it your end if this option is coming or not. Okay, I am checking how to enable in the next class. I will see why these menus don't come in new user. Okay. Okay. Okay, because every student asks me, Mm-hmm. okay, why these things are not coming. So I will search on that. Okay. Okay. Is the thing. I people are coming more and more people are coming to me. That is the thing. Mm-hmm. um 40 let me see. Okay, I need to on command prompt. So yeah, I'm not getting that option Yeah. uh to use the So classic yeah, so I will see why these options are not coming. Why these? As I'm old user of Azure, so they have granted me, or that is a thing, or that's something you need to take. That I need to okay. check. Okay. Mm-hmm. So I'll see that. I'll go to agents. First start it on. I will I because it is off, it would be offline. Okay. So I will start it. So you if your agent is stopped now, you Mm-hmm. just run this command, not to run all these commands. Okay. Okay. Once you created your agent, there is no need to install again and again these processes. Okay. So this has been done. Mm-hmm. Your uh, agent become online. Okay. Now you go to here, pipelines, new pipeline, classic editor. Just choose the code, click continue, click on empty job. Don't select anything. Otherwise, your code will not run. Okay. Okay. Click on empty job. Okay. And agent, instead of this agent, we will take our own agent and then we will turn just save and test.
this will run. Okay. This is just a automation. You just no need to write any code. You just need to select the agent or task. Yeah. Code will run. It will start. It is queue. It is in the queue. It will start in a while. Mm-hmm. See, everything is run. Mm-hmm. Okay. Next we do. That is very important. What is YAML? Let me tell you what is YAML first. YAML means yet I aim not markup language. It's not yet another markup language. I was wrong. I Mm-hmm. searched the exact full form to yesterday. It is yet aim not markup language. Okay. Okay. It's not yet another markup language. It is Mm-hmm. yet aim not markup language. Okay. So some trainers tell yet another Yeah, markup yet language. another markup Okay, language. but it is yet aim not markup language. Okay. Yeah. Why it is so? Because it is human intuitive. Okay. Why it is human intuitive? It is for data serialization. Okay. Mm-hmm. And data serialization means you are serializing data into bits. Okay. Mm-hmm. Then it is a composition of different languages. So it is more, you can say, special language. Okay. Composition Okay. of many languages, JSN, XML, anything. Okay. Mm-hmm. Okay. You can write microservices code. Okay. You can write any configuration code. Okay, now what is Okay. the difference between YAML and XML? Let me take XML here and let me take here JSN. Okay, so if you see, let me open some code and then I will write it here, the important points. Okay, so if you see, here is the curly brackets, Yeah. first thing. So if you go in here, it would be curly brackets in this. In XML, if we see, let me open one more tab. There is angular brackets, same thing, but angular brackets. Mm-hmm. Yeah. Okay. Everything will be in closed and like HTML. Okay. Yeah. Okay. And here, if you see Yeah. Okay. YAML, so if you see YAML is, you can only put name and host in a indented way. Okay. Yes. It should not be like कोई इधर लिख दिया कोई इधर लिख दिया कोई इधर लिख दिया. It Mm-hmm. should be like sequence in a notebook. Yes. Okay, with dots and all. Okay, so you can write double quotes, you can write list, you can, it's a configuration, it's for configuration, means it is a, a readable code between machine and the human. Mm-hmm.
Okay, you are transferring your data from human to machine. Yeah. Okay, that is the thing. That is why YAML is popular, because these days we are automating our things. We are transferring our data from human, making machines human. Mm-hmm. That is what our goal is now, right now, Yes. to increase the labor. Yeah. That is what the things are becoming now. Okay, that is why it is popular, and that is why these things are becoming more trending in the market. All the other things are also more in trending. If you go in VB.NET, there will be still in the market. You will be old, and you can be good in manufacturing. You can go in manufacturing industry. Okay, if you want to go in that very old DOS and all, that still exists. uh, I tell you one example. 3 months back, the language which used to, when Narayan Murthy maybe started his company, Mm-hmm. that language I was getting work, DOS work, and I was very nervous. Will I be able to do that work? And that Mm-hmm. was part time, and that was lifetime work. I could say, I can say yes, but now that time I was not in the mood. That whole things, that is more difficult. This is nothing, but that is Yeah. very difficult. Okay. Okay. In when my colleague, there was, when I was in Keen India, he Mm-hmm. used to work on I forget that language. That was very big computers, mainframe. Okay. Mainframes was very popular. Yeah. So we used to say, मेन फ्रेम वाला कहाँ जाएगा? वो तो वो कभी काम ही नहीं होगा. बट मेन फ्रेम वाला सक्सेसफुल हो गए. VB.NET वाले सक्सेसफुल हो गए. .NET वाला मतलब वो पीछे हो गया. Mm-hmm. उसको और मेहनत करनी पड़ी. Mm-hmm. देखिए, VB.NET, और उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी. उन्होंने बना ली अपनी लाइफ. वो उसी में लगे रहे और मल्टीटास्कर नहीं हुए. वी बिकम मल्टीटास्किंग. Mm-hmm. एंड वी आर हम और प्रेशर झेल रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. Yeah. ठीक है. Just choose that field and become master in that field. My problem was that nobody was to direct me in my family, because I am the second person in the service. Okay, Mm-hmm. in after my father, and to reach Okay. to that thing, to almost a mastery. Okay, so that's a different thing. But the thing is, it takes lot of time, lot of hard work, and lot of things. Okay. Yeah. Okay, so now you can try YAML, practice YAML in front of me. Okay, some things you can practice me in front of me. You share Okay. your screen. Okay, Sure. I'll give you some like test, you do. Okay, try yourself. Okay. Um, Let can you? me share. Let me make you host. Yeah, sure. Okay, I was having puri. I ordered puri Oh, in the morning. for the Okay. breakfast. Yes, and I woke up around 4:30. Now my sleeps are like, I become hardworking. So I started I enjoyed some songs, KK songs. When KK that happened, I was very down, got down. Okay, मेरा मन ही नहीं करता कुछ सॉन्ग, कोई सॉन्ग सुनने का. मेरा वो फेवरेट था सिंगर, KK. तो और कोई सुनने को मन नहीं करता था. और उसके बाद फिर अब क्या कहते हैं, दूसरा क्या है कि मैं कथक, आई वॉज डूइंग कथक इवन, समथिंग Oh, कथक. nice. एंड और फिर उसके बाद मैंने वो बस क्या कहते हैं, पूड़ी ऑर्डर की और खा ली. बस सारा खुद ही एंजॉय कर लिया. हाँ, तो देखो.
ये तो YAML पाइपलाइन YAML पे ही पे, जाऊँ मैं? ये ना ना YAML पाइपलाइन पे स्टार्टर पे चल लो, चाहे इसको एडिट, हमने तो एडिट ही करनी है। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो इसको देखो, ब्रांच कोई लगा के देखो अपने आप, जो अपने ब्रांच बनाई थी, वो बनाई थी, उस ब्रांच का कोड रन करके देखो, वेरिएबल्स करके देखो, अपने आप ट्राई करो, अपने आप पहले इसको मॉडिफाई करो कि आपको मिला हुआ है काम, अपने आप देखो कि आप क्या कर सकते हो इसके अंदर। आप देखो कि आपके पूल्स कौन से बने, कोई और पूल ट्राई कर लो, कोई और चीज ट्राई कर लो। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से। कोई माइक्रो सर्विसेज का कोड लिख लो, मैं दे देती हूँ, चलो आपको एक, ठीक ओके। है, देती हूँ। ठीक है। हाँ, ऐसे सबसे पहले ना देखो, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट शेयर स्क्रीन करके, कि कैसे लिखना है सिंपल सिंपल कोड्स। ठीक है। ओके। ठीक है, मेरी सोम, जैसे ये लिखा हुआ ना, मैन, तो हम्म। आप इस तरह ब्रैकेट में दो मैन डाल सकते हो, वुमेन इस तरह से डाल सकते हो। ठीक है, एक तो इस तरह का एग्जाम्पल हो गया, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक YAML फाइल होगी, दिस इज वन YAML फाइल। ठीक है। ओके। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मतलब आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो, की वैल्यू भी डाल सकते हो, लिस्ट भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। हम्म। माइक्रो सर्विसेज हैं तो ASP.NET का कोड, ऐसे करके उसका अंदर, लेकिन ये डॉट यहाँ नहीं होना चाहिए, ये डॉट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप XYZ लिखो। ठीक है, ये प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मान लो आप कॉन्फ़िग लिख रहे हो, तो ये की बनाई हुई, सपोज ये की है, हम्म। ये कीज है, जैसे ना ये सारी जो होती है ना, मैं ट्यूटोरियल लूँ एक, ये देखो, इसमें क्या होता है कि ये की होती है, ये की है। ठीक है, की वैल्यू प्लेयर। ठीक है। ठीक ओके। है, और मैं नेक्स्ट पे जाऊं, के बाद वो इंडेंटेशन की बात कर रहा है, हम्म। कि ऐसे इस पे इंडेंटेशन होनी चाहिए, कि ऐसे, ऐसे टैब, मतलब पहले एक पॉइंट लिखा, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, फिर तीसरा पॉइंट, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, एक के नीचे एक नहीं, उसके हाँ। अंदर के अंदर। ठीक है। ठीक है, या मतलब या जैसे इतना खत्म हुआ, और उसके अंदर नेक्स्ट। ठीक है, हम्म। फिर उसके अंदर नेक्स्ट। अब ये नई चीज शुरू होगी, तो ये फिर से बाहर आ गई। ठीक हम्म। है, जैसे हम एक बिलिंग करते हैं, समझ लो। ठीक है, हाँ। बिल बिल बना रहे हैं, ये बिल है एक, समझ लो, वो एक रेस्टोरेंट का बिल बना रहे हैं, तो वो एक प्रकार से है, हम एक आइटम बना रहे हैं, आइटम के अंदर आइटम, और आइटम बन गई, उसके बाद नेक्स्ट आइटम। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब हम सेपरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स भी कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ये नहीं कि हम स्पेसिफिक डाटा डालना है, हमने वो कुछ भी डाल सकते हैं। हम कॉन्फ़िग के लिए भी डाटा डाल सकते हैं, हम किसी मशीन के लिए रीडेबल डाटा भी डाल सकते हैं, जैसे मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब इसमें कमेंट्स, जैसे हैश, हैश लगा होता है,
उसमें जब आप किसी में जाओगे, क्या कहते हैं, किसी में स्टार लगा होता है, किसी में हम स्टार लगाते हैं, किसी में हम बैक स्लैश लगाते हैं, इसमें हम हैश लगाते हैं। ठीक है। हम्म अब एरे, एरे आ गया कलेक्शन, ठीक है, ये कलेक्शन बन रही है। ठीक है, हम्म एरे का एग्जाम्पल कलेक्शन आ गया। तो ये दिस इज कलेक्शन, और यहाँ पर मैपिंग हो रही है। ठीक है, ये मैप हम्म, मैप कर रहा है कि नेशनल में है तो नेशनल में न्यूयॉर्क, शिकागो और ये आएंगे। ठीक है। हाँ। अगर उसकी हाइट है तो उसका ये है, एवरेज है, ये सारा कुछ है, उसका डिटेल है। ठीक है। हम्म ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। ऐसी टीम रैंकिंग। और अगर मैं नेक्स्ट में आती हूँ, अगर आपको पढ़ने हो ना कभी भी ट्यूटोरियल, किसी का भी पढ़ना हो, एक ट्यूटोरियल पॉइंट बेस्ट है, और एक W3 स्कूल्स, और कहीं मत जाना। ठीक ओके। है। और स्टैक ओवरफ्लो, बस ये तीन है। इनमें से अगर ट्रबल शूट करना है तो स्टैक ओवरफ्लो पढ़ो, कोई भी एरर। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पॉइंट और W3 स्कूल्स किसी भी लैंग्वेज के लिए तो वो मोस्ट है। और कहीं मत जाओ, वरना कहीं पर जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे ना, तो यू विल गेट कंफ्यूज और वो समझ में भी नहीं आएगा। हम्म ठीक है। पढ़ते रह जाओगे और वो कंपनी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वो सॉल्व ही नहीं होएगा। हाँ। ठीक है। ओके। ये मैं कुछ लिंक्स मैं पिंग कर दूंगी। ठीक है। तो हाँ आप देख लेना, मैं आपके लिए लेटर ऑन के लिए सही रहेगा। ठीक है। देखो ये JSN फाइल होती है। अगर हाँ। एग्जाम मैं YAML को JSN में, अगर मैं इसके अंदर, अब मैंने इसके अंदर अगर मैं ऐसे लगा दूंगी ये हम्म करली ब्रैकेट्स, तो ये हाँ। अल्टीमेटली JSN फाइल बन गई जेसन मेरी। बन जाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। हम्म, अब इसमें और भी ज्यादा मुश्किल चीजें आती जा रही हैं, जो हम लेटर ऑन कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, कवर अप अभी करनी नहीं चाहिए हमें। ठीक है। ओके। कल अब ये करना, आपका अकाउंट अपना क्रिएट कर लो। आपका अकाउंट चल रहा है अभी, अगर हम करें काम वीएम, अज्योर वीएम का। डेवऑप्स का नहीं, एक्टिव तो नहीं। नहीं है वो अभी, तो मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो हम डिप्लॉयमेंट एंड लाइब्रेरीज में देखती हूँ मेरा, हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं वो कर लेती हूँ। तो ये वेरिएबल्स किस किस लिए है, कि सपोज हमें, क्या कहते हैं, एक वेरिएबल बना के, आपको कंपनी ने काम दिया कि आपको डिप्लॉयमेंट करनी है, तो हम्म, आपको उनके लिए वेरिएबल्स बनाने हैं, कि ये फलानी कॉन्फ़िगरेशन है, और या फलानी कॉन की है, और ये हमने वेरिएबल बनाया है, एक्स इज इक्वल टू दिस की, और एक्स 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 इज इक्वल टू दिस डिप्लॉयमेंट की। तो वो बनाकर ऐड करके उसका डिस्क्रिप्शन देके कुछ भी लिखो, यहाँ पर XYZ लिखो। ठीक है, हम्म, और उसको ऐड कर दो। ठीक है, और इसके अंदर आप अपना नाम वो लिखो, की लिखो, और जैसे ये नेम है ना, नेम लिखो, यहाँ वैल्यू लिखो सुरुचि। ठीक है, और ये ऐड हो जाएगी। ओके। ठीक है, बस ये ऐड हो गई। ठीक है, और इसे सेव कर दो। हम्म ये बन गई आपके, आपका वेरिएबल बन गया। ठीक है। हाँ। ठीक है। और अगर आपने डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स में जाना है, तो आप ग्रुप बना लो। ग्रुप से मेरे ख्याल से पहले आपको ग्रुप, नहीं, ग्रुप बना सकते हैं। तो हम ग्रुप बनाते हैं, एजोर डेवॉप्स का ग्रुप। तो अब ये डिप्लॉयमेंट के लिए, कि ये हमारे इसी ग्रुप में हमें अपना डाटा रखना है। ठीक है, इसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, हम्म ये देखो पावर शेल का। ठीक है, इसको हाँ। कॉपी कर सकते हो और इसको आगे रन कर सकते हो। इसको हम नेक्स्ट में देख लेंगे क्या है ये स्क्रिप्ट, पावर शेल में रन करके दिखा दूंगी मैं इसको। ठीक है। ओके। ठीक है, अब रिलीजेस में जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर न्यू पाइपलाइन क्रिएट करते हैं।
ये बेसिकली हम प्रोडक्शन पे अब डाटा में डिप्लॉय कर रही हैं। ओके। ठीक है। हम्म। इसमें फिर आप एम्प्टी जॉब कर लो। वो मैं अभी एम्प्टी जॉब का करके दिखाते, फिर स्पेसिफिक कर लेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है, अभी स्टेज 1 ले लिया मैंने कोड, और मैं इसको यहाँ कर रही हूँ। ठीक है। ओके, मुझे कोड लेना पड़ेगा तब ये करेगा, तभी ये रन करेगा शायद। तो चलो, हम एक आर्टिफैक्ट में ऐड करती हूँ, अपना आर्टिफैक्ट ऐड करती हूँ। ठीक है। मैंने ओके। अपना आर्टिफैक्ट ऐड किया। अगर अपने आर्टिफैक्ट ऐड नहीं करोगे तो ये कुबरनेट्स पे डिप्लॉय नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, मैंने कुबरनेट्स लिया। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो मेरे 3 टास्क हो गए। ये पहला टास्क हो गया, हाँ। ये दूसरा टास्क हो गया, ये तीसरा टास्क हो गया। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या कह रहा है ये। अभी मुझे आगे सब्सक्रिप्शन, मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं, मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो ये चीजें होंगी नहीं। ठीक है। हाँ। तो मैंने इतना दिखा दिया, तो ये चीजें मैं आगे दिखा दूंगी। आप अपना अकाउंट कल क्रिएट कर लो। ठीक है, ओके। फिर हम आगे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। कल हाँ। तक अपना अपना सारा रेडी कर लो, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो मैं बाकी चीजें भी दिखा दूंगी। ठीक है। हाँ श्योर। ठीक है, क्योंकि वो चीजें होंगी नहीं, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है नहीं। एक ये ओके। लास्ट में क्रिएट एनवायरनमेंट, ये देख लेते हैं, ये लास्ट देख लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही है कि आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जिस पर डिप्लॉय करना है अल्टीमेटली वर्चुअल मशीन। फिर आगे हम्म। वही आएगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी, मेरे पास वर्चुअल मशीन है नहीं। ठीक है। ओके। देखो, फिर वो मांगेगा ना, मांग लिया ना उसने। हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बता देना, फिर हम कर लेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी किसी में भी। ठीक है, ये सारे डिप्लॉयमेंट्स का है। ठीक हम्म। है। तो रिसोर्स ऐड बेसिकली करना। डिप्लॉयमेंट के लिए हमें लाइक अकाउंट। अज़्योर अकाउंट से कनेक्ट करना होगा, राइट? हाँ हाँ, डिप्लॉयमेंट के लिए हमें एज़ोर अकाउंट करना, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। ठीक है, तो वो फिर कल करते हैं, कल बताना मुझे, और ये रिकॉर्डिंग शेयर कर लेना। ठीक है। अगर मुझे हाँ पता श्योर। होता कि, क्योंकि हम कर लेते, बट ये मुझे पता नहीं था कि आपने अकाउंट खोला हुआ है, तो हम वो भी कर लेते आज। ठीक है। हाँ। ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन हमने काफी चीजें सीख ली, आपकी आपके टेस्ट के लिए चीजें हो गई कि हम्म। गैम्बल है क्या, और आपका काफी चीजें कवर अप हो गई। डिप्लॉयमेंट का भी आपको थोड़ा पता चल गया कि हाँ। डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो आप डिप्लॉयमेंट का भी टेस्ट क्लियर कर लोगे ऑलमोस्ट। ठीक है ना, कि उसमें ये हो सकता है कि वर्चुअल मशीन पे, हम वर्चुअल मशीन में कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर वर्चुअल मशीन चाहिए होगी, रिसोर्स रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन होएगी। ठीक है। और फिर उसके लिए अगर हमें डिप्लॉय करना है कोड, ठीक है, तो हमें हाँ। वो स्टेज कर करके चलना होगा। जैसे मेरे टास्क थे 3 टास्क, अगर वो हाँ। 3 टास्क में हमें एजोर का अकाउंट मिल जाता तो हम डिप्लॉय भी कर लेते अपना कोड। हमने कुबरनेट का मैंने कोड अप्लाई किया था, तो अप्लाई भी हो गया था, और उसके बाद हम्म। वो बस यही चीजें करनी थी। हाँ। हमारे पास, हाँ, हमारे पास होता सारा कुछ तो हम कर लेते, हमारे पास है नहीं वो सारी चीजें, हम नहीं कर पाए। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो। ठीक है। ओके, थैंक ओके, यू। वेलकम। ठीक है, मुझे रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। ठीक है। हाँ श्योर, मैं शेयर कर दूंगी।